Good morning, students. Welcome back to the class 12. Subject Business Study. Chapter Nature and Significance of Management. Today's revision topic is Nature of Management. In this Nature of Management, we will cover management as an art, management as a science, and management as a profession. Including that, we are having certain features also. We will see in today's video. So let's begin one by one. Nature of Management. In that, the first topic is management as an art. Art refers to skills and personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. It is considered as art. तो आर्ट होता क्या है? आर्ट के अंदर आप अपना स्किलफुल नॉलेज इस्तेमाल करते हो, अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस को ऐड करते हो बाय अचीविंग योर नॉलेज एंड डिजायर रिजल्ट्स विल बी शोन. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट and then you have to observe that particular subject very carefully and get experience from that particular subject. It is considered as art. अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो मैनेजर के लिए आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट एंड व्हाट यू विल डू practice on management. You will study management, you will observe how management works, and you will have a certain experience after observing that thing. It is considered as art. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट हमें एक आर्ट के जैसा ही दिखता भी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारी एप्लीकेशंस को फुलफिल कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ art we are fulfilling? We are observing, we are selecting people, we are planning our uh, work. It is all related to art. So management is also an art, it says by definition. So what are the features of art? The first point is existence of theoretical knowledge. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर ये है तो वो है थियोरेटिकल नॉलेज. अगर आप आर्ट करते हो तो आर्ट इज एन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम मटेरियल which are available and which has to be studied compulsorily and get theoretical knowledge. अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. अगर आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर के लिए मैनेजमेंट के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए. होटल मैनेजर हो, एविएशन मैनेजर हो, जो भी मैनेजर आपको बनना हो या चार्टेड अकाउंटेंट बनना हो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए और थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है. इवन अगर आप कंप्यूटर की बात करते हो तो कंप्यूटर की भी थियोरेटिकल नॉलेज आती है. उसको आप सीखते हो, सीखने के बाद में उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डिज़ाइन डेवलप करना, पैटर्न्स बनाना, ये सब चीज़ें आप सीखते हो एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल नॉलेज के बेस पर. तो इसीलिए मैनेजमेंट भी एक थियोरेटिकल नॉलेज है और वो एक तरह का आर्ट है. Let's begin with the second topic. In features of arts, we are having second point known as personalized application. The use of basic knowledge differs from person to person, thus the art is a very personalized application. हर किसी की थिंकिंग अलग, हर किसी का सोच अलग. काम अगर एक ही जैसा है फिर भी उनका थिंकिंग तो अलग ही होता है. एज एन पेंटर, what do painter do? एक ही जैसी तो पेंटिंग कोई नहीं करता. What they will do? Every mind has their own creativity. It is considered as personalized application. तो मैनेजर भी वैसे ही होते हैं. What managers do? हर एक मैनेजर की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती और कॉमन नहीं होती. कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, इसीलिए उनकी पोजीशंस भी अलग अलग होती हैं. तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि फीचर ऑफ एन आर्ट इज personalized application and it can be applicable to management also. Point number 3, based on practice and creativity. Yes, अगर आपके पास theoretical knowledge है, नॉलेज के साथ में आप अपना एड टू एडवांटेज करते हो, तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है जो है प्रैक्टिस. If you are a theoretical knowledge person, you will apply it in practice and then you can create something new. It is considered as art. तो आर्ट के अंदर मैनेजमेंट को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो एज अ गुड मैनेजर यू शुड बी क्रिएटिव, यू शुड बी इनोवेटिव एंड यू शुड बी हैविंग theoretical knowledge with it. All these features of arts are present in management, so it is called as an art. मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट में आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है.
तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जो ये तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े, फर्स्ट जो हमने पढ़ा वेल डिफाइंड नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों चीजें मैनेजमेंट को लिंक करती हैं, इसलिए इसको कहा गया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो we'll discuss about nature of management. Second point, management as an science. So first point is very much clearly, science is a systematic body of knowledge that is based on general truth which can be tested anywhere, anytime. साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑप्शन है जिसमें जनरल ट्रुथ रिलेटेड टेस्ट कभी भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे सिचुएशन चेंज हो जाना, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाना, फ्लड आ जाना, तो उस बेस पे मैनेजर को क्विकली कुछ डिसीजन लेने होते हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो एक जनरल ट्रुथ पे काम करती है और इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है और कोई भी टाइम पे हो सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है मैनेजमेंट एज एन साइंस। लेट्स बिगिन विद द फीचर्स ऑफ साइंस। द फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहली चीज, साइंस जो होती है वो सिस्टमैटिक नॉलेज है। आपको अगर साइंस में डॉक्टर बनना हो तो बायोलॉजी लो, बायोलॉजी के बाद फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी है, इसलिए मेंशन किया गया साइंस हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है और साथ साथ में वो रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। Next point is principles based on experience and observation. Scientific principles are developed through experiments and observation. साइंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जितना ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उतना ज़्यादा वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और नई नई चीज़ सीखने के बाद में वो नए नए इन्वेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ये पॉसिबल है। Whatever you are doing as an experiment, you should observe that what results are coming out. That results can benefit your organization. So that is considered as management as a science. Features, we are having third point, universal validity. If we are talking about universal validity, that means scientific principles are universally acceptable. Science जो है वो universally सब जगह acceptable है, तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी तो सब जगह acceptable है। 14 principles of Henry Fayol, you know that 14 principles are being applicable all over the world. So management is also a systematic body, then they are also having a certain principles, they have certain experiments on observation based application also. That's why science management as a science is mentioned over here. Last point has been clearly mentioned that as principles of management is not the exact of principles of pure science, so it may be called as inexact science. पूरी तरह से साइंस नहीं है लेकिन ये भी एक साइंस जैसा वर्क करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स है, फिर बाद में अलग अलग और प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये सारे मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे और एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि ये प्योर साइंस नहीं है, बट साइंस के बहुत सारे पार्ट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम लोग साइंस कहते हैं, मैनेजमेंट एज एन साइंस। लेट्स गो विद द प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरे को डॉक्टर रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद में मैं अपने नॉलेज में अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके आगे डेवलप होता हूँ। चार्टेड अकाउंटेंट को पूरा अकाउंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। होटल मैनेजर भी एक तरह का प्रोफेशनल ही है, उसको होटल रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन पता होगा। लेकिन जब हम लोग प्रोफेशन का वर्ड यूज करते हैं तो प्रोफेशन में हमें चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर्स, लॉयर्स ये सब कुछ आता है। तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड से सब्जेक्ट से पास होते हैं। लॉयर्स का एग्जांपल ले लो, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे आगे ट्रीट करें, या तो वो जॉब हमें देंगे या तो फिर खुद की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देंगे।
तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्यों? तो पहला फीचर आपको दिया है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल द प्रोफेशनल्स आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देने के बाद में वो उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड सारी स्टडीज करते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज क्या है? एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाता है कि यस, अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो 12 कम से कम पास होना पड़ेगा, अकाउंट्स में 90 मार्क्स होने जरूरी है। ये एक रिस्ट्रिक्शन एंट्री है। अगर अकाउंट्स में मार्क्स कम है तो शायद आपको वहाँ पे जॉब ना मिले या आपको वहाँ पे आगे पढ़ाई करने का मौका ना मिले। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में 90% मार्क्स होने चाहिए। लॉयर बनना है 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए। तो ये सारी रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज है, आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट देने के बाद में ही फिर अब आगे स्टडी कर सकते हो। सॉरी। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये जितना भी प्रोफेशन है ये सारे प्रोफेशन एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। स्कूल्स का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल्स हमेशा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड होती हैं और एफिलिएशन क्या करता है, वो एंट्री एंड एग्जिट रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन इसके साथ में जुड़ता है उन सबको ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। एवरी मेंबर हु इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, they have to follow code of conduct. Point number 4 is ethical code of conduct. अब code of conduct क्या है? Code of conduct is a guidelines or is a terms and conditions to the members, so that members have to be taken care very carefully. The member has to follow all the ethical code of conduct. If they misuse that code of conduct, their license are being cancelled very clearly. Next part is service motive. The main aim of the profession is to provide services to the client. क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करो और क्लाइंट को जब सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सर्विस आपको रिटर्न में फीस पे करता है एज अ क्लाइंट गेट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। इसलिए यहाँ पे कहा भी गया है कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन बट डस इट हैज नॉट फुल्ली फ्लेज्ड प्रोफेशनल। मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशन को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंटेंट जो प्रोफेशन के हैं वो उसके अंदर आते हैं। मैनेजमेंट के लिए भी आप स्टडी करते हो, BBA, फिर MBA, ये सब प्रोफेशन है। यहाँ पे आप स्टडी करते हो, यहाँ पे भी आपको रिस्ट्रिक्टेड सीट्स मिलती हैं, यहाँ पे भी आपका कुछ एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ता है। सो ये एक टॉपिक जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट आज हमने खत्म किया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।